This is Dr. Rajesh Khatri from the Oriental Engineering College Mathematics Department. We will be talking about Stokes theorem. Stokes theorem. If f is any of the continuous function, differentiable vector of the function, and S is the surface enclosed by the curve, then we have closed integral f dr is equal to surface integral of n curl f ds. This is a concept which is to be kept in your mind, my dear. आगे देखते हैं अब क्या करना है इसके आगे. यहाँ पे n क्या होता है? n is known as a unit normal vector at any point of S and is drawn in the sense in which the right-handed screw would be moved when rotated in the sense of the description. Now I'm talking about the Cartesian representation of the Stokes theorems. If any of the point is acted as a point, if any of the force is acted at a point, it gets resolved into a three parts. Since we are studying in the vector calculus, definitely it is being carried out with the three dimensions. Therefore, I am treating this as a closed interval of f1 dx plus f2 dy plus f3 dz is equal to surface integral of del by del y of f3 minus del upon del z of f2 followed by dy dz. In the similar manner, it is repeated further. Then we are getting some of the reduction forms here, that is closed integral of drf is equal to a surface integral which is written as in the form n cross del followed by f ds, and second is closed interval dr cross f is equal to surface integral of n cross del multiplied by f ds. Third can again be written as in the form closed interval dr phi is equal to surface integral of n cross del followed by phi ds. The important things which is to be kept here is by, that is, dr is only replaced by n cross del, which is just to reduce the calculation, or in other words, we can say it as a transformations. General form में लिखा हुआ नीचे, you can just move it to the other side. Closed integral of dr cross f is equal to surface integral n cross del cross f ds. Now, how to apply this on the sums? We will see it on the bottom. For if I am getting the sum in this fashion, verify the Stokes theorem. The given function is in this form, and the surface S is given in the form of a sphere, which is x square plus y square plus z square is equal to 1 in the xy plane. The figure is generated something in this fashion. Circle is ending on the xy plane. Now, according to the Stokes theorem, we know that closed f dr is equal to surface integral of curl fn ds. This is a statement taken by the Stokes theorem. C is a unit circle which is having the equation x square plus y square is equal to 1 and z is equal to 0. Then I am calculating for f dr. I write it down the value of f and the value of dr. Then take the dot product of those two. I got the result f dx plus z dy plus x dz. Integrate it, because this is not at all the answer. I want a closed integral, that is c of f dr. It means I integrated this, या तो आप अलग अलग कर लो या इकट्ठा कर लो. I separately do it in this fashion. For the unit circle, I know that z was equal to 0. कहाँ से आया? It was according to the given condition. dz is definitely equal to 0. Now what to do? I am doing some of the substitution here. Let x is equal to cos phi and y is equal to sin phi and dz is equal to sin phi
d5. Substitute these values. As I am substituting the values, my dear, I got this result. यहाँ पे कुछ इस फॉर्मेट में मिला, y की वैल्यू रख दो और dx की वैल्यू रख दो. 0 से लेकर के 2 पाई तक था, इसको मुझे पाई बाई 2 पे लेके आना था, क्योंकि फॉर्मूला मेरा तभी बनेगा. तो व्हाट आई डिड, मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया और लिमिट को 2 से डिवाइड किया, तो कितना हो जाएगा, वो पाई हो जाएगा. लेकिन पाई बाई 2 नहीं मिला. एक बार मैंने और मल्टीप्लाई किया, एक बार और करूंगा तो बाहर मेरे पास में -4 हो जाएगा. और अंदर लिमिट कितनी हो जाएगी, 0 से लेकर के पाई बाई 2 साइन स्क्वायर 5d5. ये आगे देखो लिखा हुआ -4 इंटू 1/2 इंटू 5/2 इज इक्वल टू माइनस पाई विच इज इक्वल टू ए. अभी आया कैसे, नीचे एक फॉर्मेट लिखा हुआ 0 to π/2 sin n theta d theta, or if it is in the form of 0 to π/2 cos n theta d theta, the power should be even. Then I am using the result the given at the top. If it is odd, then I am using the downwards, the form which is given. The difference in between the two is ऊपर वाले में π/2 से इंटू होगा, नीचे वाले में नहीं होगा. दैट इज ओनली अ डिफरेंस. बाकी रेस्ट ऑफ दिस सेकंड पार्ट बचा हुआ उसका भी पूरा नहीं हुआ. आई एम टॉकिंग अबाउट द कर्ल एफ. एट द मोमेंट आई एम राइटिंग कर्ल एफ, इट मीन्स डेल क्रॉस एफ. क्रॉस का मतलब हुआ आई एम टॉकिंग अबाउट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं है, वो क्रॉस है. आई एम टॉकिंग इन द वेक्टर्स. इसको इवैल्यूएट कैसे करेंगे, डिटरमिनेंट से. आई जे के del by del x del over del y del over del z, find the value of f y z x, evaluate it. काफी डिफिकल्ट था, तो आई एम यूजिंग सम ऑफ द सिंपल थिंग्स. यूजिंग द स्पेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स आई सब्स्टिट्यूटेड n is equal to sin theta cos phi I plus sin theta sin phi j plus cos theta k. Curl f n is equal to this much. I got the result. Hence, I want you to calculate now integration of surface integral in the sense curl of f and ds. Substitute the limits boss. नीचे जो एंगल जो बन रहा है that is nothing but a form of a circle. उसमें एंगल कितना हो गया 360 डिग्री. That means 0 से लेकर के 2 पाई तक. तो फाई की लिमिट कितनी हो गई 0 से लेकर 2 पाई तक. फिगर में दे देखो पी पॉइंट तक कहाँ पे पहुंचे, दैट इज 90 डिग्री. तो ये कितना हो गया 0 से लेकर के π/2. दोनों लिमिट्स लगा दी. एक विथ रिस्पेक्ट टू एक्सिस, एक इसके साथ में होगा प्लेन के साथ में. आई इंटीग्रेटेड इट, आई गॉट द रिजल्ट. फिर एक बार और इंटीग्रेट किया, आई गॉट दिस मच. अब बोलोगे सर 2 कहाँ चला गया, अरे भाई यहाँ पे 2 से मैंने मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया, तो ये हो जाएगा 2 sin थीटा cos थीटा, दैट इज गोइंग टू बिकम sin 2 थीटा. sin 2 थीटा को इंटीग्रेट कर दिया, आई गॉट द रिजल्ट कितना cos 2 थीटा अपॉन 2. यहाँ से जो 2 था इससे कैंसिल हो गया, बाकी ऐसे ही बचा हुआ. अप्लाई द लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट किया, रिजल्ट आ गया दैट इज माइनस पाई. फ्रॉम द इक्वेशन 1 and 2 आई केम टू नो दैट क्लोज इंटरवल ऑफ FDR is equal to pi minus pi and surface integral of curl f and ds is equal to minus pi which is equal to b. From the equation a and b, इनसे ये क्लियर तो हो गया कि when left and right hand sides are equal then left hand sides must be equal. वही चीज मैंने नीचे लिखी. This shows that close integration of FDR is equal to surface integral of curl f and ds. Hence the Stokes theorems. थोड़ा से कॉम्प्लिकेटेड भी आते हैं, इसको देखें. एक और एग्जांपल देखिए विच इज बाउंडेड इन द सिमिलर मैनर. कंडीशन थोड़ी सी अलग से बाउंडेड हो जाएगी, ध्यान से देखें. वेरीफाई द स्टोक्स थ्योरम व्हेन द फंक्शन इज गिवन टू यू इंटीग्रेटेड बाय द स्क्वायर. यहाँ पे z इक्वल टू 0 है, प्लेन whose sides are given along the line x equal to 0, y equal to 0, x equal to a and y equal to a. These are the things which is given to you. If I am moving on the x axis, a से लेकर के b पे आएंगे, you are moving to the distance a, छोटा a. तो कोऑर्डिनेट कितने हो गए, a के कितने हो गए ओरिजिन पे 0 0, b के कितने हो गए a and 0. यहाँ से ऊपर की तरफ मूव किया तो you are moving
this line is parallel to the y axis, तो definitely I will be getting the coordinates of the किसका, y का. ऊपर जब हम ऐसे मूव करेंगे तो दैट इज इक्वल टू किसके बराबर हो गया, a के बराबर. तो c पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कितने हो गए, a और a हो गए. बट फ्रॉम c इफ यू आर मूविंग टुवर्ड्स d, दैट मींस यू आर मूविंग टुवर्ड्स किसके लिए, किसके लिए, यहाँ पे सिर्फ आपको y कोऑर्डिनेट ही मिलेगा, x 0 हो जाएगा एट द पॉइंट d पर, तो वहां पे 0 और a हो जाएगा. As you are coming to a downward direction point A पे, that is coming back to the origin 0 0. I calculated for FDR, F की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, DR की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, I का I के साथ में, J के डॉट के साथ में. I got this is the result. FDR मैंने कैलकुलेट किया, इंटीग्रेट किया, क्लोज इंटीग्रल FDR किया, रिजल्ट अपने पास में ये मिला. दिस इज नॉट लॉन्ग सफिशिएंट, क्योंकि अब हमको किसके मूव करना था, पाथ पे. पाथ कौन सा होता है, A से लेकर के B तक, B से लेकर C तक, C से लेकर D तक एंड D to A तक. मूविंग अलोंग द लाइन ए बी पर. यहाँ पे क्या हुआ, y 0 होगा तो dy कितना होगा, 0. कैलकुलेट फॉर द क्लोज इंटीग्रल FDR. आई गॉट दिस रिजल्ट x स्क्वायर dx. मैंने इंटीग्रेट किया, ये आंसर आ गया. इन द सिमिलर मैनर आई मूव ऑन टू कहाँ पे, BC के लिए. x इक्वल टू a था, dx मेरे पास में 0 हो गया, क्योंकि आई इंटीग्रेट कर डिफरेंशिएट करोगे तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा. क्लोज इंटीग्रल निकाला इसका, आई गॉट द रिजल्ट कितना हो गया, 1/2 a क्यूब. ऐसे सिमिलरली आई मूव फॉर काय के लिए, CD के लिए. y इक्वल टू a, dy कितना हो गया, 0. और क्लोज इंटीग्रल किया FDR के लिए, एक्स स्क्वायर के लिए फिर से इसको इंटीग्रेट कर दिया. आई गॉट द रिजल्ट दैट इज -1/3 a क्यूब. अब हम जाएंगे इसके ऊपर लास्ट वाले पे, DA पे पाथ. DA मतलब यू आर कमिंग बैक टू द ओरिजिन. वहां पे x 0 हो जाएगा और dx आपका 0 हो जाएगा, यानी कि आंसर आपका 0 हो गया. अब हमको क्लोज इंटीग्रल निकालना था FDR का. इन सब को हमने ऐड कर दिया, तो ये और ये पोर्शन मेरे कैंसिल हो गए. जो बच गया दैट इज मेरा रिक्वायर्ड रिजल्ट. लेट इट बी योर इक्वेशन 1. कितना मिला, 1/2 a क्यूब. दूसरे पार्ट पे गए, कर्ल एफ निकाला. कर्ल एफ इन द सेम पैटर्न. इसका मतलब होता है कि डेल क्रॉस एफ. डेल क्रॉस एफ निकालते कैसे, डिटरमिनेंट मेथड. ये मैंने किया, ये निकाल दिया. वाई के मेरा आंसर आ गया. इससे काम नहीं होगा, क्योंकि कर्ल एफ इज टू बी फॉलोड बाय द नॉर्मल वेक्टर. नॉर्मल वेक्टर कितना हुआ, के के साथ में, के डॉट के कितना हो गया, 1. आई गॉट द रिजल्ट दैट इज वाई. अब मैंने इसका क्लोज इंटीग्रल निकाल के दिया, दैट इज सरफेस इंटीग्रल निकालो इसका, दैट इज कितना हो जाएगा, कर्ल एफ एन डी एस. तो यानी कि 0 से लेके a तक, 0 से लेके a तक y dx dy किया. आई गॉट रिजल्ट कितना होगा मेरे पास में, दैट इज 1/2 a क्यूब. दिस इज इक्वल टू किसके बराबर, b, इक्वेशन b के बराबर. फ्रॉम द इक्वेशन a एंड b से कंपेयर करो. क्लोज इंटीग्रल ऑफ FDR किया तो दैट इज इक्वल टू 1/2 a क्यूब. दैट बिकम्स योर इक्वेशन a. सरफेस इंटीग्रल किया अपने, कर्ल एफ एंड ds किया, दैट इज 1/2 a क्यूब. फ्रॉम द इक्वेशन a एंड b व्हेन राइट हैंड साइड्स आर इक्वल, इसका मतलब हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड मस्ट बी इक्वल, होना ही चाहिए. ये नियम पूर्वक है, मैथ्स का नियम है ये. तो आई गॉट द रिजल्ट दैट इज क्लोज इंटीग्रल FDR इज डेफिनेटली इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ एफ एन ds. यही हमने प्रूफ किया फिर से स्टोक्स थ्योरम से. थैंक यू वेरी मच.